नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में 40 सीटों पर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। सुबह 8 बजे से जारी है मतदान। आज शाम को आएंगे नतीजे। हरियाणा में पहली बार हो रहे सिख कमेटी के चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की टीम ने संभाला मोर्चा। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर जुटकर दे रहे हैं जानकारी। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हुए तैयार। 121 किसानों के अनुरोध पर लेंगे मेडिकल सहायता। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर डल्लेवाल की सेहत का जाना हाल। 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ अहम मीटिंग का दिया न्योता। और मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस बनी अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने पर नीतू के घर और गांव में खुशी का माहौल। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में पहली बार हो रहे हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से ही जारी है। सुबह 8 बजे से मतदाता पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और यमुनानगर की ये तस्वीर है, जहां मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुबह से ही मतदाता भी पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि शाम 5 बजे तक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए वोट डाले जाएंगे। उसके बाद आज ही चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हरियाणा में ये पहला मौका है जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बलजीत सिंह दादूवाल, जगजीत सिंह झींडा, दीदार सिंह नलवी, बलदेव सिंह कायमपुर की पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। वहीं पूरे हरियाणा की बात करें तो 40 सीटों पर चुनाव है, जबकि 9 मेंबर सरकार नॉमिनेट करेगी। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੂਥ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ 163 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 94 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਸਾ 'ਚ 9 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 71,491 ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ तो साड़ी सारिया चीज़ां पूरियां होंगियां, गुरुद्वारे में सुधार जरूर आएगा। वहीं कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने सुबह मतदान केंद्र के बाहर से जानकारी साझा की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनेगा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चोण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ हैं। हरियाणा की गल की जाए तो हरियाणा की 40 सीटां 'ਚ ਅੱਜ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चोण हो रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਕੂਲ, ਜਨਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਡਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ? ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਡਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ डाल के बाहर निकल सकता है। क्यों गल की जाए हरियाणा प्रदेश की अज 40 सीटां की गल की जाए उत्थे चोण हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने 3.5 लाख तो ज्यादा जिहड़े वोट ने वो बनी हुई है। तो कुरुक्षेत्र की गल की जाए, कुरुक्षेत्र के शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर, मुर्तजापुर सीट से अज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चोण सुबह 8 बजे तक वोट चलणगी ते 5 बजे तक एवें जारी रहेगी। 5 बजे के बाद मतदान यानी कि थम जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मतगणना होगी कि अज कौन जीतता है, कौन इत्थे हारता है, किस दे सिर ते अज हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी का ताज सजदा है। वेखते रहो तुसी पीटीसी न्यूज़। अशोक यादव। वहीं करनाल में भी सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को लेकर मतदान सुबह से ही जारी है। आज शाम 5 बजे नतीजे घोषित होंगे। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे। वहीं करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने भी मतदान केंद्र के बाहर से जानकारी दी है, देखिएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों को लेकर आज सुबह से ही जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस समय एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं। आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं, पुलिस तैनात की गई है और ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मॉडल टाउन में, जहां पर निसिंग का पोलिंग बूथ बनाया गया है। और आपको बता दें कि सुबह से ही जो है रुझान, जो वोटिंग प्रक्रिया की अगर बात करें तो सुबह से ही जो लोग हैं अपने घरों से निकल गए थे बाहर और वोटिंग डालने सबसे पहले पहुंचे। सिख मतदाताओं का कहना है कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है जिस कैंडिडेट को वो वोट कर रहे हैं वो बदलाव लेके आएगा। गुरुद्वारों की देखरेख होगी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबियों के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगेगी और साथ ही साथ उन लोगों के लिए काम किया जाएगा जो सिख समाज में जो थोड़े से गरीब हैं, जो अपना पालन पोषण सही से नहीं कर पा सकते। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी जो है लगातार गश्त भी करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं करनाल की। सुबह से ही जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि करनाल जिले के कुल 4 वार्ड है और 4 वार्डों में जो है 17 उम्मीदवार खड़े हैं। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3,50,000 के करीब मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। और आज शाम को जो है वोटिंग प्रक्रिया 5 बजे तक चलेगी और 5 बजे के बाद जो है यहीं पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज ही जो है उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा जो इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो वहीं जो वोटर्स हैं, जो वोट डालने आए हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनका जो सिख उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है,
वो बदलाव लाएगा, वो कोशिश करेगा सिक्खी को बढ़ावा देने की, क्योंकि हरियाणा में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हरियाणा गुरुद्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो है चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और अगर आपको दिखाऊं, तस्वीरें हैं ये करनाल की, जहां पर एक बूथ के बाद हम खड़े हैं और शाम तक जो है रिजल्ट आ जाएगा और किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में जो कैद है वो ईवीएम भी आज ही बता देगी और आज ही फैसला हो जाएगा कौन विजेता है और कौन इस चुनाव में हार गया है। करनाल से नमनदीप सिंह, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। वहीं जींद में भी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात मतदान केंद्र के बाहर देखे जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में हमारे पीटीसी संवाददाता, जींद से पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने भी मतदान केंद्र के बाहर से जानकारी साझा की है। देखिए, हरियाणा के अंदर गुरुद्वारा सिख कमेटी के प्रबंधक के जो चुनाव है वो पहली बार हो रहे हैं और जींद की बात की जाए तो वार्ड नंबर 24 से 6 कैंडिडेट यहाँ पर उम्मीदवार जो चुनाव के लिए खड़े हैं और उनमें कांटे की टक्कर भी है और नोटा के उम्मीदवार समेत 7 उम्मीदवार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और वार्ड 24 की बात की जाए तो 900 से ज्यादा वोटर यहाँ पर है और सुबह से 8 बजे से वोटिंग चालू हो चुकी थी। ईवीएम के द्वारा वोटिंग कराई जा रही है। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जो वोटर्स है वो सुबह से ही 8 बजे से आना शुरू हो चुके थे और जिस तरीके से प्रशासन ने 7:30 बजे वोटिंग से आधा घंटा पहले जो कैंडिडेट हैं और जो उनके एजेंट हैं उन सभी को अपने बूथों पर बुलाया था कि वो यहाँ पर आकर जो मॉक ड्रिल का टेस्ट है वो देख सकते हैं कि कैसे वोटिंग होती है, किस तरीके से आप जो वोटर्स हैं वो अपने उम्मीदवार का जो बटन दबाते हैं ईवीएम के माध्यम से और किसके नाम पर ही वोट जा रहा है, वो सभी अपने जो सदस्य होते हैं उनको अपना इफेक्ट होता है उनको चेक कर सकते हैं। और कोई भी अगर उनसे रिलेटेड कोई परेशानी है या फिर कोई भी शिकायत है तो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वो शिकायत के लिए वो उनके पास कॉल कर सकते हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर चुनाव हरियाणा प्रबंधक सिख गुरु कमेटी का जो चुनाव जारी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। और पुलिस की बात की जाए या फिर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हर सिक्योरिटी स्कूल के बाहर खड़ी करी गई है कि पुलिस वाले की जिस तरीके से जो वोटर्स आने वाले उनके ऊपर भी कड़ी नजर बनाई जा रही है कि जिस तरीके से जिला पुलिस की बात की जाए तो भारी सिक्योरिटी की है। यहाँ पर बूथ के बाहर खड़े किए गए हैं। जो अधिकारी हैं वो कल शाम से ही यहाँ पर मौजूद हो चुके थे और जिस तरीके से एक्टिविटी है उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व होता है या फिर कोई भी जो चुनाव के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उससे भी सख्ती से निपटने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। हर वोटर्स की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है कि ताकि कोई भी जो वोटर्स है वो किसी भी तरीके से ये ब्लेम नहीं लगा सके ताकि भाई उनकी जो वोट नहीं पड़ी या फिर कोई भी फर्जी वोट है। तो हर तरीके से पारदर्शिता से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम यहाँ पर उठाए हुए हैं और सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है और शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। और 5 बजे के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 6 बजे तक यहाँ पर जो काउंटिंग की जाएगी वोटिंग के, उसके बाद रिजल्ट आज ही जारी किया जाएगा। जींद की बात की जाए तो बूथ नंबर 24 है जो उसमें 961 से ज्यादा वोटर्स हैं और आज वो 961 से ज्यादा वोटर्स अपने उम्मीदवार के भाग्य का आज है उसका फैसला करेंगे कि जींद से वो किसको यहाँ से चुन के भेजते हैं। और जो हरियाणा की 40 कमेटी के जो सदस्य जीत कर जाएंगे उन्हीं में से एक उम्मीदवार को हरियाणा पर गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का जो प्रधान होता है उसको चुना जाएगा, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से जो हरियाणा का पैसा बाहर जाता था वो पैसा हरियाणा में ही लगेगा और जो हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं वो अलग से ही नजारों में देखने को मिलेंगे। जींद से पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 121 किसानों के अनुरोध पर अब जगजीत डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय की हाई पावर कमेटी ने बीती रात किसान नेताओं से मुलाकात भी की, जिसके बाद अब 14 फरवरी को दिल्ली के अंदर किसानों और केंद्र सरकार के बीच अहम मीटिंग होगी और इस मीटिंग में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल, सरवन पंढेर समेत अन्य किसान नेता शामिल होंगे। वहीं इससे पहले कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत का हाल जाना और किसान नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के मीटिंग का प्रस्ताव किसानों को दिया और किसानों से बातचीत करते हुए 14 फरवरी को होने वाली मीटिंग का
न्योता दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 4 घंटे तक कृषि मंत्रालय के अधिकारी खनौरी बॉर्डर पर मौजूद रहे और उन्होंने किसान नेता डलेवाल समेत अन्य किसानों से बातचीत भी की। चरखी दादरी के गांव पिचोपा कला के माइनिंग जोन में मिट्टी खिसकने के मामले में बाडड़ा के विधायक उमेद पातुवास ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। इस दौरान ग्रामीण भी मौजूद रहे और वहां पहुंचे ग्रामीणों का माइनिंग कंपनी के प्रति रोष बरकरार रहा। इधर विधायक ने माइनिंग अधिकारियों को मलबा हटाने के निर्देश दिए और सांगवान खाप ग्रामीणों और माइनिंग संचालकों के बीच हुई पंचायत में विधायक की मौजूदगी में 6 मांगों को लेकर माइनिंग शुरू करने पर सहमति भी बनी है। यहाँ पर ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसमें संभावना जताई जा रही थी कि 1-2 पॉपलैंड फंसी हैं, कुछ गाड़ियाँ। इसके लिए मैंने परसों रात को भी डीसी साहब से बात की थी, माइनिंग अफसर से भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक गाड़ी फंसी थी जो हमने निकाल दी। मैं खुद यहाँ पे मौका देखने आया था, गांव इकट्ठा हुआ है। गांव और जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इसका पहाड़ का ठेका ले रखा है, लीज जिनकी है, वो भी आए हुए हैं। दोनों पक्ष बैठाए गए हैं, दोनों में सहमति कराई गई है। हम ये नहीं चाहते कि गाँव को कोई नुकसान हो, हम गाँव के साथ हैं। वेरएज हम ये भी नहीं चाहते कि जिसने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसका कोई नुकसान हो। तो उसी तालमेल के साथ बहुत सी बातें गाँव वालों ने रखी थी जिस पे लगभग सहमति बनी है। वो अगली मीटिंग में तय हो जाएगा कि ये कब से काम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल 100% जाँच करवाई जाएगी। पहले भी हमारे माननीय माइनिंग मिनिस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, वो चले गए थे। आज मैं आया हूँ तो शायद उन्होंने किसी माइन को उस दिन बंद भी करवाया था और आज मैं आया हूँ, मौका देखा है। मेरे साथ में चेयरमैन साहब भी आए हैं, इंजीनियर साहब भी आए हैं, सुनील इंजीनियर अड़ोदी, और भी जो गांव के जिम्मेवार आदमी हैं, खाप के प्रधान जी भी आए थे, सेक्रेटरी साहब भी आए थे और गांव पूरा बैठा है। जो दोनों पक्ष जहां संतुष्ट होंगे उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जो देखा है मुझे लग रहा है कि माइनिंग जो है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं जो इनके पैरामीटर्स हैं उससे ज्यादा नीचे ले गए। मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर नीतू घनघस अब अर्जुन अवॉर्डी बॉक्सर बन गई हैं। राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान मिलने के बाद नीतू के घर और गांव धनाना में खुशी का माहौल है। इस दौरान उनके परिवार ने ये अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की है। नीतू ने भी गर्व महसूस किया है। नीतू की मां का कहना है कि सारी उम्र गोबर उठाने और घास लाने में बीत गई, लेकिन बेटी के खेल मेडल और राष्ट्रपति भवन में उसके सम्मान को देखकर बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। इस दौरान नीतू ने अर्जुन अवार्ड मिलने पर अपनी भावनाएं भी जाहिर की हैं। मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और जब खेलना शुरू किया था तो नहीं पता था कि अर्जुन अवार्ड क्या होता है और कौन सा मेडल जीतना है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना खेल में टाइम दिया तो पता चला कि ये खिलाड़ी के लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर एक खिलाड़ी के लिए सम्मान है। तो फिर जब मैंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती तो हाँ, मैं इसके लिए पूरी दावेदार थी कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो मैं अभी 2024 में इसके लिए सिलेक्ट हुई और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला है और ये मुझे आने वाले जो मेरे कंपटीशन है उनके लिए एक एनर्जेटिक रहेगा। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।